السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائن۔ تماثیل تھیٹر میں شراب تماشا، ٹون شائقین ناچتے اور پیسے لٹاتے رہے۔ ضلع انتظامیہ نے لائسنس منسوخی کے لیے سفارشات ہوم ڈپارٹمنٹ کو ارسال کر دی۔ وزیر اعظم اسکواڈ کی 6 گاڑیاں بوڑھی نکلیں۔ 7 سالہ پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ لاہور پولیس نے آئی جی پنجاب کو تحریری درخواست کر دی۔ جرم غریبی اوپر سے معاوضہ طلب کرنے کا ایک اور جرم۔ مزدوری مانگنے پر شوز فیکٹری مالک نے 3 مزدور شفیق آباد چوکی میں بند کرا دیے۔ بیلف نے پولیس کی غیر قانونی حراست سے تینوں مزدور بازیاب کرا کر سیشن عدالت پیش کر دیے۔ سبزہ میں شہمیر عرف ملتانی پراپرٹی ڈیلر سے 1.5 لاکھ روپے تنازع کے بعد کھمبے پر چڑھ گیا۔ پولیس کی یقین دہانی کے بعد ملتانی 2 گھنٹے بعد نیچے اتر آیا۔ سبزہ پولیس نے اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ گورنمنٹ صحت مٹھا ہسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے کی غفلت۔ 14 ماہ قبل آپریشن کے دوران خاتون کے پیٹ میں تولیہ بھول گئے۔ 32 سالہ ثنا شاہد کے پیٹ سے میو ہسپتال میں آپریشن کے بعد تولیہ نکال لیا گیا۔ عید کے بعد سبزی بے دید، قیمتوں میں کئی گنا اضافہ۔ ٹماٹر 120، ادرک 320 روپے فی کلو، جبکہ برائلر گوشت 40 روپے اضافے کے بعد 220 روپے فی کلو میں فروخت۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی محکمہ ماحولیات کی انسداد ڈینگی ٹیم حرکت میں آ گئی۔ بند روڈ پر انسپیکشن سروے کے دوران گلشن راوی، سگیاں پل اور اسلام پورہ سمیت 14 مقامات سے بھاری تعداد میں ڈینگی لاروا برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ترک سفیر ایس بابر جی گرگن کی ملاقات۔ پنجاب میں فنی تعلیم کا فروغ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں تعاون کی پیشکش۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے اسکاٹش وزیر حمزہ یوسف کی بھی ملاقات۔ ٹرافک سائنس ایجنسی نے محکمہ ایکسائز کے منشیات سیمپل واپس کر دیے۔ لیب مینیجر نارکوٹکس کا کہنا ہے کہ صرف پولیس کے بھیجے سیمپل کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز رائے طاہر نے ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او ہربنس پورہ کو معطل، 5 کے تبادلے کر دیے۔ ادھر قائم مقام چیف ٹریفک آفیسر کا شہر کے 21 ٹریفک سیکٹرز کا دورہ، غیر حاضری پر 9 ٹریفک وارڈنز کو شو کاز نوٹس۔ دوسرے روز بھی حجاج کرام کی آمد کا سلسلہ جاری، مختلف پروازوں کے ذریعے 350 سے زائد حاجی لاہور پہنچ گئے۔ ایچیسن کالج کے ننھے طلباء کی سکھر میں عید منانے کے بعد لاہور آمد۔ کالج انتظامیہ کے وقت پر نہ پہنچنے سے ایئرپورٹ حکام نے طلباء کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ کالج انتظامیہ کی بے خبری، ننھے طلباء پون گھنٹہ راہ تکتے رہے۔ قربانی کے گوشت کا قیمہ بنوانے کے لیے قصابوں کی دکانوں پر رش، قصاب منمانے دام وصول کرنے لگے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد لاہور پہنچتے ہی پردیسی مشکل میں گھر گئے۔ شہر کے بیشتر عوامی ہوٹل عید کے چوتھے روز بھی بند، ریڑھیوں سے نان ٹکی، انڈا اور چنے کھا کر گزارا کیا۔ عید کے چوتھے روز بھی راج گڑھ کے رہائشی پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی نے بیل کی قربانی کی۔ لاکھوں کی تعداد میں کھالیں چمڑا منڈی میں پہنچا دی گئیں، مختلف مراحل سے گزار کر چمڑا تیاری کا عمل جاری۔ تحریک انصاف نے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے دفتر چھین لیا۔ آئی ایس ایف نے آزاد حیثیت میں بلدیاتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے نون لیگ یورپ کے وفد کی ملاقات۔ ادھر گورنر سے آل پاکستان اسمال ٹریڈرز ایسوسی ایشن اور کاٹیج انڈسٹری کے وفد کی بھی ملاقات، تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کا سنگھ پورہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، چھوٹا راوی نالہ کی جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، اراکین صوبائی اسمبلی چودھری یاسین سہل اور میاں نصیر احمد کی جانب سے حلقہ پی پی 156 کے کارکنان کے اعزاز میں عید ملن پارٹی۔
تحریک انصاف گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام، گلبرگ ٹاؤن کے نئے عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ صارف عدالت نے چائنیز جنریٹر کو جاپانی ظاہر کر کے فروخت کرنے پر تاج انجینئرنگ انڈسٹریز وحدت روڈ کے مالک کو 24 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ DHA مسجد میں سابق بیوروکریٹ مبین ملک کی رسم کو ادا کر دی گئی، اہم سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ آرمی بریگیڈ گراؤنڈ میں وفاقی سیکرٹری صحت فاروق آوان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری سہیل عامر سمیت اعلی افسران کی شرکت۔ EDU ایجوکیشن نے طلباء کی 100% حاضری اور ڈسپلن بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی، عمل درآمد نہ ہونے پر ہیڈ ٹیچرز کے خلاف فیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا اندیا۔ ترکی کے 3 رکنی تاجر وفد کا تاجپورہ میں روشنی پبلک اسکول کا دورہ، لڑکیوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے اسکول انتظامیہ کو ماہانہ $1500 امداد کا اعلان۔ جیلانی پارک کے سامنے موٹر سائیکل ایسوسی ایشن آف پاکستان کا سیاحتی تربیتی کیمپ، دوران سیاحت کیمپ لگانے، کھانا پکانے، مچھلی پکڑنے سمیت رہنے سہنے کی تربیت جاری۔ عید ختم ہوتے ہی شادیوں کا سیزن شروع، خواتین نے خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا، ملبوسات اور دیگر اشیاء میں دلچسپی۔ گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں سینئر صحافی عارف نظامی کے بیٹے یوسف نظامی شادی کی تقریب، سیاسی اور صحافت سے وابستہ افراد کی شرکت۔ ریجنل انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے لاہور کی ٹیموں نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ پریکٹس شروع کر دی۔ عید کے چوتھے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شاہی کلاں کا رخ کر لیا، لاہور یہ مغلیہ طرز تعمیر کے شہر میں دن بھر جگتے رہے۔ اور چھٹیوں کی وجہ سے لاہوریوں کا عید پیکج جاری، شہریوں کی بڑی تعداد تفریح کے لیے الفلاح تھیٹر پہنچ گئے۔ ذکی اور بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ لاہور پولیس نے وزیر اعظم سمیت VVIPs کی سیکیورٹی کے لیے چلنے والی 6 جیپیں تبدیل کرنے کے لیے حکومت سے فنڈز مانگ لیے۔ وزیر اعظم اور VVIPs کی سیکیورٹی کے لیے لاہور پولیس کی 6 لینڈ کروزرز جیپیں ساتھ چلتی ہیں۔ لاہور پولیس کی طرف سے حکومت کو درخواست کی گئی ہے کہ 2006 ماڈل یہ جیپیں بار بار خراب ہو جاتی ہیں۔ پولیس کے مطابق کسی بھی گاڑی کو 5 سال بعد تبدیل کیا جانا لازمی ہے۔ ان جیپوں کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ ڈبن پورہ سبزہ زار کا رہائشی پراپرٹی ڈیلر سے 1.5 لاکھ روپے تنازع کے بعد احتجاجاً کھمبے پر چڑھ گیا۔ سبزہ زار پولیس نے اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ مزید بتا رہے ہیں زین العابدین اس رپورٹ میں۔ ڈبن پورہ کے رہائشی محمد شمیر عرف ملتانی نے 4 سال قبل ڈرائیون روڈ پر 3 مرلے کا پلاٹ 1.5 لاکھ روپے کے عوض خریدا تھا، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود نہ تو اسے پلاٹ ملا اور نہ ہی پیسے واپس ملے، جس سے دل برداشتہ ہو کر شمیر عرف ملتانی سبزہ زار میں بجلی کے بڑے کھمبے پر احتجاجاً چڑھ گیا۔ اتنی منتا کر کے انہوں تھک گئے، رانا صاحب دے دو پیسے، رانا صاحب دے دو۔ مذاکرات تو اس سے ہو رہے ہیں اور 11 22 والے دوسری بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ پیسے دے دیے، میں نے اس کو پلاٹ دے دیا اور کوئی میرا معاملہ نہیں اس کے ساتھ۔ اب کیا ایشو ہے؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ مجھے پلاٹ وہ پسند نہیں جو میں نے دیا تھا، بس یہ ایشو ہے اس کا۔ ملتانی کو کھمبے پر چڑھا دیکھ کر اہل علاقہ، پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ لوگوں نے ملتانی سے مذاکرات کرنا شروع کیے، لیکن اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے پیسے دلوائے جائیں۔ SHO سبزہ زار شریف سندھو نے متعدد بار ملتانی سے ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات کیے، لیکن 2 گھنٹے تک اس نے کسی کی نہ سنی۔ آجا 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 اویا دیکھ پولیس کی گڈی چ بٹھا لیا تھلے آجا پھر آجا، میرے تو یقین نہیں آجا تھلے۔
इस दौरान मुल्तानी की वालदा भी रोते हुए जय वकुआ पर पहुंच गई और अपने बेटे को खंबे से नीचे उतरने का कहती रही। टेलीफोन पर मुज़ाकरात के दौरान SHO शरीफ सिंधु ने प्रॉपर्टी डीलर राना मंजूर को हिरासत में लेकर मुल्तानी को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद वो खंबे से नीचे उतर गया। मुल्तानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अगर पुलिस की जानिब से भी उसकी दादरसी नहीं की गई तो वो दोबारा खंबे पर चढ़कर खुदकुशी कर लेगा। मैंने पैसे नहीं देने, मैं इलाज की ठुकरावा, हट्टी सच्ची पैसे नहीं रखो। इंशाल्लाह जी दूसरा फील्ड भी मेरे पास है, अभी इनका फैसला करते हैं। SHO सब्जादार शरीफ सिंधु का कहना है कि मुतासरा शख्स को इंसाफ दिलवाया जाएगा। खंभों पर चढ़कर एहतजाज करने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर बरवक्त मासूम शहरियों की शिकायत का जाला किया जाए तो इन वाकयात में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन राना याज और यावर भट्टी के साथ जैनुल आबदीन, सिटी 42। गवर्नमेंट सैयद मिट्टा अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की संगीन गफलत। 14 माह कबल गायनी ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में तौलिया भूल गए। पेट के दर्द के इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाली 32 साला खातून को बिलाखिर में अस्पताल में शफा मिल गई। सर्जन्स ने ऑपरेशन करके तौलिया निकाल दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट सैयद मिट्टा अस्पताल में 14 माह कबल क्रीम पार्क की रहायशी 32 साला सना शाहिद का गायनी का ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर्स और अमला खातून के पेट में तौलिया भूल गए, जिस पर उसको पेट का शदीद दर्द लाहक हो गया। सैयद मिट्टा अस्पताल से दोबारा रजू करने पर खातून की एक बार फिर सर्जरी की गई, लेकिन डॉक्टर्स को तौलिया दिखाई न दिया। पेट दर्द के इलाज के लिए दर बदर फिरने के बाद जुमा को खातून का मेयो अस्पताल में ऑपरेशन करके तौलिया निकाल दिया गया है। मुतासरा खातून के शौहर का कहना है कि बीवी का इलाज करवाते हुए उसका जनरल स्टोर भी बिक चुका है। 14 माह पहले मेरी मिसेज का सर्जरी हुआ था सैयद मिट्टा बाजार हॉस्पिटल में। सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था। जब हम घर गए हैं तो पेन शुरू हो गई मेरी मिसेज को। मैं ये महसूस हो रहा था शायद कोई पेंडिक्स को प्रॉब्लम ना हुई हो। फिर हम मियो में लेके आए हैं, ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद पता चला जी इसमें तकरीबन टावल कह सकते हैं, ये स्पंज है, तकरीबन आधा गज का या होगा, वो निकला। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजा अब रूबे सेहत है और चंद रोज तक उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये हमारे पास कल शाम को इमरजेंसी में आई थी पेट की दर्द के साथ, तो इसका ये फैसला किया गया था कि ऑपरेशन किया जाएगा पेट का। जब पेट का ऑपरेशन किया तो अंदर से जो है एक स्पंज हम इस्तेमाल करते हैं जो आंतरियों को साफ़ करने के लिए, वो अंदर से निकला था इसके और आंतरियों को नुकसान पहुंचा हुआ था, आंतरी में सुराख था। अब पेशेंट माशाल्लाह स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है और इम्प्रूव कर रही है। हेल्थ केयर कमीशन ने वाकया का नोटिस लेते हुए गवर्नमेंट सैयद मिट्टा अस्पताल के MS से मुतासरा खातून को फराहम किए जाने वाले इलाज मुआवजे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। हज बैतुल्लाह की सादत से शरफयाब होने वाले हुज्जाज की मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर वापसी का सिलसिला वक्फे से जारी है। PIA की पहली हज परवाज़ रात 3 बजे जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ 732 के जरिए 150 से ज़ायद हाजी जद्दा से लाहौर पहुंचे, जबकि शाहीन एयरलाइंस की परवाज़ 148 के जरिए 25 हुज्जाज कराम कराची से लाहौर पहुंचे। PIA की परवाज़ 304 के जरिए 10 हाजी कराची से लाहौर पहुंचे और एयर ब्लू की परवाज़ 471 के जरिए 250 से ज़ायद हाजी जद्दा से लाहौर पहुंच गए। ईद की छुट्टियां मनाने के बाद HSN कॉलेज के नन्हे तलबा सक्खर से लाहौर पहुंच गए, लेकिन उनको लेने के लिए कॉलेज इंतजामिया ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से कम सिन बच्चों को 45 मिनट इंतजार की तकलीफ से गुजरना पड़ा। HSN कॉलेज के नन्हे तलबा PIA की परवाज़ PK 690 के जरिए सक्खर से लाहौर पहुंचे। नन्हे तलबा इंतजार गाह में कॉलेज इंतजामिया की राह तकते रहे, ताहम उनको लेने के लिए कोई ना पहुंचा, जिससे बच्चे परेशानी का शिकार हो गए। इस दौरान इन बच्चों ने इंतजार गाह से बाहर निकलने की कोशिश की, ताहम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और PIA के अमले ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। और अब बात करेंगे शहर में जारी डेंगू वबा की। शहर में डेंगू का खतरा बदस्तूर मौजूद है। भी अस्पताल में डेंगू के 6 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 400 से तजावुज कर गई है। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद में बेतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान मेयो अस्पताल में 6 मरीजों के क्लिनिकल टेस्ट के बाद उनके डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक की गई है। मजमूई तौर पर शहर में डेंगू के केसेस की तादाद 400 से तजावुज कर चुकी है। ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म होते ही महकमा माहौलियात की इंसदाद डेंगू टीम फिर एक्शन में आ गई। बंद रोड पर डेंगू इंस्पेक्शन सर्वे के दौरान 14 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। महकमा माहौलियात की इंसदाद डेंगू टीम ने DG माहौलियात फारूक हमीद और डिप्टी डायरेक्टर यूनुस जाहिद के सरबराही में बंद रोड पर सर्वे किया। इस दौरान गुलशन रावी, सगिया पुल और इस्लामपुरा समेत 14 मुख्तलिफ मकामात से भारी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया, जिस पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए डीजी माहौलियात फारूक हमीद ने कहा कि अब मौसम कदरे बेहतर होने के बायस बाहर के मकामात पर डेंगू का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। ताहम घरों के अंदर अब भी डेंगू मच्छर की अफजाइश के इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए लोगों को अब पहले से ज़्यादा एहतियात बरतना होगी। डीसीओ लाहौर के हुक्म पर टीएमओ एहसान जाहिद ने एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा जल्लो पार्क में मच्छर मार स्प्रे किया। जल्लो पार्क में डीडीओ एच वाघा टाउन डॉक्टर इमरान बशीर और टीएमओ वाघा टाउन एहसान जाहिद ने अपनी निगरानी में जल्लो पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मच्छर और मक्खी मार स्प्रे करवाया। एहसान जाहिद का कहना था कि डीसीओ लाहौर नसीम सादिक ने स्प्रे करवाने के ऑर्डर इसलिए दिए क्योंकि ईद कुर्बान के मौके पर आलाइशों की वजह से मक्खियों की तादाद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वबाई बीमारियां पैदा होती हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ टीमें शहर के इलाकों में स्प्रे कर रही हैं ताकि माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखा जा सके और वबाई बीमारियों पर हद्दुल कदर काबू पाया जा सके। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक कहते हैं कि छोटा रावी नाला की तामीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिंहपुरा में रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने हल्के के मसाइल के सिलसिले में मीटिंग की और अहले इलाका की शिकायत सुनी। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करना हमेशा से उनकी अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ की लागत से छोटा रावी नाले पर सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके जरिए बारिशों के बाद यहाँ पर पानी खड़ा नहीं होगा और इलाके का देरीना मसला हल होगा। इस मौका पर शेख नईम, मास्टर फयाज और उमर फारूक समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। ईद के चौथे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने का सिलसिला जारी। राजगढ़ के इलाके में प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ने बैल की कुर्बानी की। मोहम्मदी पाक राजगढ़ के रिहायशी प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी का कहना है कि हदीस मुबारका के मुताबिक यौम नहर यानी ईद के रोज़ किसी को कुर्बानी करने में कोई इख्तलाफ नहीं, अलबत्ता अयाम तशरीक के मुताबिक 11, 12 और 13 ज़िलहज तक कुर्बानी करना जायज़ है। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब में भी ईद के चारों रोज़ कुर्बानी होती है और वो भी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए हर साल ईद के चारों रोज राह खुदा में कुर्बानी करते हैं। ईद उल अजहा के 3 दिनों में करोड़ों रुपए की खालें चमड़ा मंडी में पहुंचा दी गईं। खालों को नमक लगाने के बाद चमड़ा बनाने के लिए फैक्ट्रियों में भिजवाना शुरू कर दिया गया। लाहौर की चमड़ा मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है, जहां हर साल पूरे मुल्क से करोड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवरों की खालें लाई जाती हैं। जहां पहले मरले में इन खालों से चर्बी और रेशे साफ किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें नमक लगाकर रख दिया जाता है। फिर इन्हें चमड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें मुख्तलिफ कीमियाई तरीकों से चमड़े की शक्ल दी जाती है। और अब आपको बताएंगे कि कुर्बानी के गोश्त का कीमा बनवाने के लिए कसाबों की दुकानों पर रश लग गया। कसाबों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कीमा बनाने के मनमाने पैसे वसूल करना शुरू कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने कुर्बानी के गोश्त का कीमा बनवाने के लिए कसाबों की दुकानों का रुख कर लिया है। इकबाल टाउन, मून मार्केट, समनाबाद, मुजंग और दीगर इलाकों में कसाबों ने कुर्बानी के गोश्त का कीमा बनाने के लिए 40 रुपये फी किलो तक वसूल करना शुरू कर दिए हैं। कसाबों का कहना है कि ईद पर गोश्त का कारोबार नहीं होता, इसलिए वो कुर्बानी के गोश्त का कीमा बनाकर ही दिहाड़ी लगा लेते हैं। ईद के चौथे रोज़ भी चिड़ियाघर में शायकीन का रश रहा। शहरी अपने अहलो अयाल के साथ मुख्तलिफ जानवरों की अटकीलियों से महसूस होते रहे। ईद कुर्बान की मसरूफियात खत्म होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर की सैर की। शहरियों का कहना था कि ईद उल अजहा पर अव्वलीन तरजीह कुर्बानी होती है, फिर दोस्त अहबाब में गोश्त तकसीम करने में ही ईद गुजर जाती है। ईद के चौथे रोज़ चूँकि मसरूफियात कम होती हैं तो वो बच्चों के हमरा चिड़ियाघर की सैर को आए हैं, जबकि मौसम भी खासा खुशगवार है। चिड़ियाघर की सैर के लिए आए बच्चे मुख्तलिफ जानवर खसूसन सूजी, चंपेज और शेरों की अटकेलियों से महसूस होते रहे। और अब आपको आगाह करेंगे शहर में ईद के बाद क्या सूरत हाल है। शहर के बेशतर अवामी होटल्स ईद के चौथे रोज भी बंद रहे। खाने के लिए होटलों पर इन्हिसार करने वालों को परेशानी का सामना रहा। शहरियों ने रेहड़ियों से नान, टिक्की, अंडा और चने खाकर ही गुजारा किया। तफसीलात के लिए देखते हैं जमालुद्दीन जमाली की ये रिपोर्ट। शहर में परदेसियों समेत लाखों लोग होटलों से खाना खाकर गुजारा करते हैं, मगर इस मर्तबा ईद के चौथे रोज भी अवामी होटलों की बड़ी तादाद बंद रही, जिससे शहरियों को नाश्ता करने में भी दुश्वारी पेश आई और दोपहर को खाने का भी मसला बना रहा। और इस सूरत हाल में शहरियों को रेहड़ियों से नान, टिक्की, अंडा और चने खाकर गुजारा करना पड़ा।
मैंने काफ़ी देखे हैं कि होटल वगैरह बंद है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, तो इधर देखा ये चने मिल रहे हैं, तो इधर से अब मैंने नाश्ता किया है। आज काफ़ी सारे होटल बंद हैं, खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आज नान टिक्की और नान चने बस इन्हीं दुकानों पे रश है। शहर में महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जबकि कुछ अवामी होटल भी खुले हैं, मगर बहुत से अवामी होटल्स ईद के चौथे रोज भी बंद पड़े हैं। मुलाजमीन, तुलबा, परदेसी, मजदूर और शहर में अकेले रहने वाले अफराद को खाना खरीदने के लिए होटल तलाश करने पड़े। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो रेडी फरोशों से ही खाकर काम चलाया। होटल बंद है ईद की वजह से, इसलिए हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी आज टिक्की खाने के लिए नहीं, खाना नहीं है, काफ़ी होटल बंद है, जो महंगे वाले वो खुले हुए हैं, सस्ते वाले हैं यहाँ पे, और टेस्टी भी और टिक्के खाने आए हैं। ईद के मौके पर तमाम कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होना चाहिए, ताकि शहर में ड्यूटीज देने वाले अफराद और परदेशियों की जरूरतें पूरी होती रहें। कैमरामैन सैयद मराज के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, मगर लोगों की तफरीह है कि खत्म होने को नहीं आ रही। पार्क्स में बच्चों की तफरीह का क्या हाल है, ये बता रहे हैं रेहान गुल अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की सरकारी छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, ताहम शहर के पार्कों में ताहाल आवाम की बड़ी तादाद बीवी बच्चों के हमरा तफरीह के लिए आ रही है। ईद को यादगार बनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने मार्ल टाउन पार्क का रुख किया। शहरियों को कहना था कि बच्चों की जिद की वजह से वो चौथे रोज भी तफरीह के लिए आए हैं। बच्चों के साथ आना पड़ा जबरदस्ती, क्योंकि बजट में तो बचा ही कुछ नहीं। जो वाकई जिद कर रहे थे घुमाने के लिए लेके आए और बच्चों को घुमा रहे हैं। आज बच्चों की आखिरी छुट्टी थी, बच्चों ने कहा आज हमारा आखिरी डे है, आप हमें एंजॉय कराएं, पार्क में ले जाए। दूसरी जानिब बच्चे वालिदैन की मजबूरियों से बेनियाज वक्त का भरपूर फायदा उठाते रहे। बच्चों का कहना था कि इन्हें वालिदैन के साथ यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में आके, पापा के साथ आए हैं और बहुत ज्यादा झूला लिया, हम शिप पे भी बैठे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी अम्मी अबू से बहुत जिद की कि हमें पार्क में लेके आए, हम यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे झूले ले रहे हैं। मार्ल टाउन में कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि रश के बावजूद आला मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। ईद की वजह से यहाँ पे क्राउड है काफ़ी, देखिए आप फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। इस कैफेटेरिया को मज़ीद बेहतर करने के लिए उन्होंने सोसाइटी ने अगर यंग जनरेशन को दिया है साथ, मैं इंशाल्लाह ताला इसको और बेहतर करूँगा। हुकूमत की जानिब से तो ईद पर सिर्फ 3 छुट्टियां दी गई थीं, ताहम लाहौरियों ने आज का दिन भी तफरीह करते गुजारा। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ रेहान गुल, सिटी 42। ईद उल अज़हा तो गुजर गई, मगर छुट्टियां अभी बाकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए फैमिलीज के हमरा शाही कला का रुख किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से आए सयाह मुगलिया तर्ज तामीर के शहर में जकड़े रहे। तफसीलात के लिए देखते हैं रिजवान नकवी की रिपोर्ट। लाहौर की शनाख्त शाही कला अपने मुनफरिद तर्ज तामीर के सबब हर दौर में सियाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल अज़हा की छुट्टियां मनाते हुए शाही कला पहुंच गई। शहर के लिए आए अफराद का कहना था कि अजीम शान कला मुगलों की ज़हनी वुसअत का पता देता है। शायकीन ने बताया कि वो अपने बच्चों को अपने ताबनाक माजी से आगाही के लिए शाही कला लाए हैं। बच्चों को इसलिए इधर लेके आए कि इनको पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। आई हैव टेकन माई किड्स हियर, आज के इनको दिखाऊं कि हमारा हिस्ट्री क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि द बेस्ट थिंग आई लव इज दैट द स्लीपिंग चैम्बर ऑफ जहांगीर आई लव द मोस्ट। शाही कला का अहाता जहांगीरी, दीवाने आम, मुगल गैलरी और शीश महल शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। यहाँ जो चीज़ अट्रैक्ट करती है दैट इज शीश महल। अभी तक जितना मैंने देखा है वो मुझे अच्छा लगा। शायकीन का कहना था कि हुकूमत कदीम तारीखी वरसे को महफूज बनाने और सियाहत को फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम करे। 500 साल हो गए इसके तमीर में, इमारत में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ जो वक्त हादरे में अंग्रेज़ों ने और सिखों ने इसको ख़राब किया उसकी ख़राबी है, अदरवाइज़ ये मुकम्मल हाल खड़ा हुआ। और लाहौर का किला सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ जिसने लाहौर फतह कर लिया, हिंदुस्तान को फतह करना कोई मुश्किल नहीं होता। स्कूल्स के तलबा और सियाहों ने हाथी दांत से तैयार किया गया ताजमहल का मॉडल भी बड़े शौक से देखा। शायकीन ने मुगलिया दौर की तस्वीर और कुरान पाक के कदीम नुस्खों में भी गहरी दिलचस्पी ली। मुगलिया तर्ज तामीर का ये अजीम शाहकार कई 100 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन वाजिद अली के। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर और स्कॉटलैंड के वज़ीर बराए खारजा अमूर ने मुलाकातें की। इन मुलाकातों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर एस बाबरजी गुरगन की मुलाकात के दौरान तुर्की की कारपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन काउंसिल के सरबराह डॉक्टर सरदार जाम कामल कोलाबाश, वज़ीर सेहत खलील ताहिर संधू, चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसान, चेयरमैन PND और दीगर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हिलाल अहमर इस्तेदादे कार में इजाफे के लिए तुर्की की रेड क्रिसेंट से इस्तेफादा करे। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की के नए सफीर के दौर में पाक तुर्क ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कम लागत की हाउसिंग स्कीमें तैयार करने के हवाले से तुर्की के तावन का खैर मकदम करते हैं। कबल अजीज स्कॉटलैंड के वजीर बराए खारजा अमूर और बैनुल अक़वामी तरक्की हमजा यूसुफ से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि बरतानिया में नवंबर के आगाज में तवानाई सेक्टर के लिए रोड शो मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि स्कॉटलैंड ने पंजाब में तवानाई सेक्टर खसूसन स्मॉल हाइडल डैम्स और तालीम के शोबा में तावन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से टेस्टों के लिए भिजवाए गए मंशियात के सैंपल टेस्ट करने से इनकार किया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर की तरफ से पकड़ी गई मंशियात के मुख्तलिफ सैंपल टेस्टों के लिए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर को भिजवाए गए थे। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लैब मैनेजर नार्कोटिक्स यूनिट ने महकमा एक्साइज को कहा है कि वो अपने सैंपल वापस ले जाएं, क्योंकि वो सिर्फ पुलिस की तरफ से भिजवाए गए सैंपल टेस्ट करते हैं। एक्साइज ने अगर मंशियात के सैंपल्स के टेस्ट कराने हैं तो वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के पास जाएं। DIG ऑपरेशंस ज़ाहिद ताहिर ने SHO हरबंसपुरा को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल, जबकि 5 SHOs के तकर्र और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। DIG ऑपरेशंस ज़ाहिद ताहिर ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO हरबंसपुरा मुजम्मिल हुसैन को मुअत्तल करते हुए पुलिस लाइन से तासीर रियाज को SHO हरबंसपुरा तैनात किया है। इसी तरह SHO डिफेंस एस इंस्पेक्टर मियां कदीर को तब्दील करके SHO सिविल लाइन्स तैनात कर दिया गया। कायम मकाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने शहर के 21 ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा किया। ड्यूटी से गैर हाजिर 9 ट्रैफिक वार्डन्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। कायम मकाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर चौधरी मोहम्मद अजहर गुजर ने ट्रैफिक की रवानी का जायजा लेने के लिए खयाबान जिनाह, ठोकर न्याज बेग, कैंट, मालवन, मुगलपुरा, मिस्त्री शाह, लोअर माल समेत 21 ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा किया। CTO ने बगैर बताए ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर होने पर 9 वार्डन्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए, जबकि रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न करने पर ट्रैफिक सेक्टर रावी रोड के एहलकारों की सरजनिश की। तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात में मुतहर्रिक रहने वाले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से दफ्तर छीन लिया गया। बिजली मुनक़ता करके दफ्तर को ताले लगा दिए गए। ISF ने आज़ाद हैसियत में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन मसाइल में जकड़ गई। ISF की जानिब से आम इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर जदोजहद की गई, लेकिन बदले में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को दिया जाने वाला दफ्तर छीन लिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी यासिन सोहल और मियां नसीर अहमद की जानिब से हल्का PP 156 के लीगी कारकुनान के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। वाल्टन में मुस्लिम लीग नून के हल्का PP 156 के वर्कर्स के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी यासिन सोहल और मियां नसीर अहमद ने किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस मौके पर जहां लीगी कारकुनों से ईद मिलते रहे, वहां हल्के के मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि उनकी जमात हमेशा कारकुनों को इज्जत की निगाह से देखती है और इसी सिलसिले में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया ताकि खुशगवार माहौल में मिल बैठने का मौका मिल सके। तहरीक इंसाफ गुलबर्ग टाउन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलबर्ग टाउन के नए अहदेदारों को नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। PTI गुलबर्ग टाउन के सदर नज़ीर चौहान की जानिब से टाउन अहदेदारों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। पार्टी में आसिम शौकत, चौधरी रियाज, मियां अख्तर, निसार, लतीफ़ शहजादा, खुरम इस्लाम, तहसीन अहमद अलवी, शहनाज परवीन शहजादी और औरंगजेब और नीलम रशीद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुलबर्ग टाउन के सदर नज़ीर अहमद चौहान ने नए टाउन अहदेदारों के तकर्रुरी के नोटिफिकेशन भी जारी किए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुस्लिम लीग नून यूरोप के वक्त और ताजिरों के साथ मुलाकातें की। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुस्लिम लीग नून यूरोप के वफ्द ने हाफिज अमीर अली ऐवान की सरबराही में मुलाकात की।
गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सैयद असद बुखारी, अंजुम डार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलियास, सरदार हामिद अली डोगर, मोहम्मद इस्माइल, फरहत मलिक, बशीर अहमद, मलिक बिशारत, नसीर सरवर, आरिफ अली आरिफ, चौधरी मोहम्मद नईम, चौधरी अफजल इकबाल, चौधरी मजहर इकबाल, फैसल मिर्जा, नासिर अब्बास तारर, मोहम्मद नदीम मुगल, अजीमुल्लाह कुरैशी, मूसा खान और खान आलम ज़ेब समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बाद अज़ा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन और कॉटेज इंडस्ट्री के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बाबर भट्ट, मोहम्मद हनीफ फखर, गोगी शाह, मलिक सफ्तर अली, शेख मोहम्मद नईम, मोहम्मद हारून, मियां मोहम्मद सलीम, चौधरी जफर इकबाल साईं, हाजी अब्दुल रज़ाक, मलिक मोहम्मद सईद, हाजी आमिर, शाहिद इकबाल समेत दीगर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजिर मुल्क का सरमाया है जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तजारती सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ताजिरों के मसाइल के हल के लिए बहुत जल्द इनकी मुलाकात वजीर खजाना इसहाक डार और FBR हकाम से कराई जाएगी। वफाकी सेक्रेटरी सेहत फारूक अवान की वालिदा की नमाज जनाजा 21 आर्मी ब्रिगेड ग्राउंड में अदा की गई। आला अफसरान और अजीज़ व कारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुहेल आमिर, सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर एजाज मुनीर, एडिशनल IG सरमद सईद, साबिक मुतसिब पंजाब खालिद महमूद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज अहमद, SSP इमरान महमूद, GM सिकंदर, साबिक IG मोटरवे जफर अब्बास लक, फयाज अवान, आगाज नदीम और कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल समेत अजीज़ व कारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की इमामत कारी अताउर रहमान ने करवाई। साबिक ब्यूरोक्रेट और अदाकारा अंजुमन के साबिक शौहर मलिक मुबीन की रस्म कुल अदा की गई, जिसमें अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मलिक मुबीन की रस्म कुल का इनकाद DHA की जामे मस्जिद में किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर अंजुम, मुस्लिम लीग फी लाहौर के सदर चौधरी जहीर, ताजिर रहनुमा वकार हुसैन, सीनियर सहाफ़ी खालिद चौधरी, इब्राहिम लक्की, मोहम्मद फारूक, शेख तौसीफ, उमर फारूक, समीर रशीद, अमजद खान मरहूम के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कारी खालिद ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम सियाहत के दौरान कैंप लगाने, खाना पकाने और मछली पकड़ने समेत वहां गुजारा करने के मुख्तलिफ तरीके बताने के लिए ट्रेनिंग कैंप का इनकाद किया गया। जेल रोड पर जलानी पार्क के सामने डॉक्टर जका की सरबराही में मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लगाए गए ट्रेनिंग कैंप में मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद अली, जहांजेब जैन, शहजाद, ताहिर अली, गजनफर बेग, जुल्फी बट और शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। तुर्की के वफ्द का रोशनी पब्लिक स्कूल का दौरा। वफ्द ने लड़कियों को मुफ्त तालीम देने के लिए स्कूल इंतजामिया को माहाना $1500 इमदाद देने का ऐलान किया है। ताजपुरा में वाक़ई रोशनी पब्लिक स्कूल में तुर्क वफ्द ने दौरा किया। इस मौका पर बच्चों में मिठाइयाँ और चॉकलेट्स तकसीम की गई। वफ्द की क़यादत अली बोज अतली ने की और इस मौका पर मोहम्मद बोज अतली और अकबर आज़ाद समेत रोशनी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन नदीम मलिक और सदर डॉक्टर सईद मलिक भी मौजूद थे। ईद खत्म होते ही खवातीन ने खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। मौसम में तब्दीली के बायस कपड़ों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मौसम की तब्दीली के बायस बाजारों में खरीदारी के लिए खवातीन का रश रहा। खवातीन अपने बच्चों और खुद के लिए शॉपिंग करने में मसरूफ रहीं। दुकानदारों का कहना था कि बदलते मौसम में खरीदारी भी बढ़ जाती है और ये सिलसिला सर्दियों के वक्त तक जारी रहेगा। लाहौर गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी के बेटे यूसुफ निज़ामी की शादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। ज़ैनब महबूब आलम की शादी यूसुफ निज़ामी से अंजाम पाई। ज़ैनब महबूब आलम मेजर जनरल रिटायर्ड महबूब आलम की बेटी हैं। कैंट में मुनक़्क़िदा इस शादी में चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन सैयद, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अहमद मुख्तार, एतजाज़ एहसन, बुशरा एतजाज़, मेजर हसीब, शफकत रसूल, मेजर उमर, ब्रिगेडियर बदर, आसमा जहांगीर, अख्तर औसाफ, सलमान भट्ट, एडवोकेट मुजीबुर रहमान शामी, डॉक्टर मुबशर हसन, डॉक्टर रिजवान, शुमाइल आलम, सज्जाद गुल, आबिद हसन मंटो, फ़ख्र इमाम, नसरीन शेख, इरफान अनवर और फारूक हमीद ने शिरकत की। रीजनल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए लाहौर की टीमों ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों के बाद दोबारा प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। स्टेट क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में लाहौर जावी अंडर 19 टीम मेजबान क्लब के साथ अपना तीसरा प्रैक्टिस मैच खेल रही है। इससे पहले लाहौर जावी और लाहौर शालीमार की टीमें ईद से कबल 2 प्रैक्टिस मैच खेल चुकी हैं, जबकि अब दीगर क्लब्स के साथ मैच खेलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताकि टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी हो सके,
साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और उनके बेटों पर मुश्तमिल जोड़ियों के माबैन एलाइट बैंक डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं राना आज़िर नूर की। अलीम डार क्रिकेट एकेडमी जोहर टाउन में खेले जाने वाले इवेंट का एहतमाम इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार ने किया, जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर, सलीम मलिक, मुश्ताक अहमद, मंजूर इलाही, ज़हूर इलाही, निज़ामुल हक और टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों और उनके बेटों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इवेंट में मजमूई तौर पर 12 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में अलीम डार और अली डार पर मुश्तमिल जोड़ी ने अकरम रजा और ज़िशान अकरम को 14 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद इख्तितामी तकरीब के माने खसूसी थे। इवेंट के ऑर्गेनाइजर अलीम डार का कहना था कि इवेंट का मकसद तमाम क्रिकेटर्स को एक बार फिर इकट्ठा करना था ताकि माजी की यादें ताज़ा हो सकें। जो क्रिकेटर पास में जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो कौन से क्रिकेटर जो चाहेंगे कि हमारे बेटे भी फ्यूचर में पाकिस्तान को तरफ से खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इवेंट में शरीक साबिक खिलाड़ियों और उनके बेटों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें मैच खेलकर बहुत मजा आया। बड़ा मुख्तलिफ और एक यूनिक इवेंट करवाया है, ये दुनिया में कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले एक जो है थ्योरी के ऊपर काम होता है, फिर उसको प्रैक्टिकल आप शेप दे देते हो। गैदरिंग अच्छी, इवेंट अच्छा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर उसका बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा होना चाहिए, जो ऐसे टूर्नामेंट्स होते तो है नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा है खेल के, यहाँ पे होने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और उनके बेटों के माबैन टूर्नामेंट को देखने के लिए फैमिलीज की कसीर तादाद भी ग्राउंड में मौजूद थी। फादर एंड सन डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद को खिलाड़ियों ने बहुत सराहा। इनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स मुख्तलिफ बुनियादों पर होने चाहिए। कैमरामैन अली नुमान के साथ राना आज़िर नूर, सिटी 42। मिशन हेल्दी पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मारूफ गुलकारा ज़ुबैदा खानम इंतकाल कर गई हैं। एक बार फिर आपको इस अहम खबर से आगाह करेंगे कि मारूफ गुलकारा ज़ुबैदा खानम इंतकाल कर गई हैं। ज़ैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। ज़ैन बताएगा क्या अपडेट्स आपके पास? जी रेहान, माजी की मारूफ गुलकारा ज़ुबैदा खानम जो है वो इंतकाल कर गई हैं। ज़ुबैदा खानम जो है वो माजी की मारूफ गुलकारा है। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने जो है वो लाजवाल जो गीत गाए, इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ज़ुबान आम उनके जो गीत हैं वो उन्होंने गाए। वो फिल्म इंडस्ट्री के नामवर कैमरामैन रियाज बुखारी की जो वो ज़ौजा थी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अब जो है डायरेक्टर हैं एक फैसल बुखारी, वो उनके बेटे हैं। ठीक है, वो आज रियाज बुखारी जो उनके शौहर हैं, रियाज बुखारी की आज बरसी थी और आज बरसी के मौका पर ही उनकी जो है खाना खाने के बाद शाम ढले जो है तबीयत अचानक खराब हुई है, जिस पर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। इससे पहले भी वो काफ़ी बीमार रही है, लेकिन जो है बाद में वो सेहतयाब हो गई थी। लेकिन आज उनके शौहर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर कैमरामैन थे रियाज बुखारी, आज उनकी बरसी थी और बरसी के मौका पर ही उनकी तबीयत जो है वो अचानक खराब हुई है। अभी फैसल बुखारी से बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब बुलेटिन में शामिल करेंगे अदालती कार्रवाइयों के हवाले से कुछ खबरें। मजदूरी मांगने पर कारखाने के मालिक ने 3 मजदूरों को पकड़कर शफीकाबाद चौकी में महफूज करा दिया। अदालत ने मजदूरों को बैलफ के जरिए बाजियाब करवा के आज़ाद कर दिया, जबकि पुलिस के खिलाफ अपना फैसला महफूज कर दिया। एडिशनल सेशन जज अली इमरान की अदालत में शफीकाबाद के मोहम्मद अशरफ ने अपने वकील चौधरी वकास अली की वसातत से हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके 3 भाई नदीम, वसीम और सलीम शू फैक्ट्री शफीकाबाद में काम करते थे। तीनों ने कारखाने के मालिक बिलाल से अपनी मजदूरी मांगी। इनकार पर उन्होंने एहतजाज किया, जिस पर उनको शफीकाबाद पुलिस के एहलकारों से मिलकर थाने में महबूस करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में 11 रोज बाकी रह गए, ताहम ईद उल अजहा के अदालती तातीलात के बायस उम्मीदवारों के इंतखाबी सरगर्मियां जोर नहीं पकड़ सकी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में लाहौर वकला के इंतखाबी सरगर्मियों का मरकज होता है, लेकिन इंतखाबात करीब आने के बावजूद हस्ब साबिक इस साल उम्मीदवारों के इंतखाबी सरगर्मियां जोर नहीं पकड़ सकी। दोनों सदाती उम्मीदवारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से होने और लाहौर में उनके दौरे कम होने की वजह से भी इलेक्शन सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के 31 अक्टूबर को होने वाले सालाना इंतखाबात में 3 अहम ओहदों के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा।
सारिफ अदालत ने चाइनीज जनरेटर को जापानी जनरेटर जाहिर करके फरोख्त करने और बाद में वापस न करने पर ताज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज वादरटूट के मालिक को 24 अक्टूबर को जवाब के लिए तलब कर लिया। सारिफ अदालत में हुमा ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन के रिहायशी तारिक अजीज ने ताज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज वादरटूट के मालिक के खिलाफ 5,33,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने दुकान से एक जनरेटर 25,500 रुपये में खरीदा। इसने रकम जापानी जनरेटर की दी, लेकिन जब घर जाकर इसको देखा तो ये चाइना का बना हुआ निकला। EDU एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने स्कूलों में तलबा की हाजिरी 100% करने और डिसिप्लिन बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। अहकामात ना मानने वाले हेड टीचर्स के खिलाफ पीडा कानून के तहत कार्रवाई होगी। रेटिगन रोड पर वाक़ सेंट्रल मॉडल स्कूल में स्कूलों के निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से मीटिंग हुई, जिसकी सदारत EDU एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने की। इस मौके पर EDUs और लाहौर के तमाम स्कूलों के हेड टीचर्स ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए EDU एजुकेशन ने कहा कि असातिज़ा कराम स्कूलों में तलबा की हाजिरी को पूरा करें और सफाई का खास ख्याल रखें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर